اب اس کا سب کچھ میرا ہے، میں اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ لیکن کیا حوریہ اس رشتے کو قبول کرے یا نہ کرے، حق تو تمہارا ہی ہے، وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ اس کے اندر کی آواز نے اس کے خدشے کو رد کر دیا۔ لیکن میں پھر بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ محبت لینے کا نام نہیں ہے بلکہ دینے کا نام ہے، اور میں اس پر جبر نہیں کر سکتا، یہ میری محبت کی توہین ہوگی۔ شاہ زیب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ گھڑی 3:30 بجا رہی تھی اور وہ ابھی تک جگا ہوا تھا۔ عرشیہ جب سے حوریہ کے گھر سے آئی تھی خاموش خاموش تھی۔ حوریہ نے غور تو کیا لیکن پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، وہ خود ہی بتا دے گی۔ عرشیہ اپنا دل تیمور کی گاڑی میں ہی کہیں بھول آئی تھی۔ وہ شوخ شرارت والا تیمور عرشیہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عرشیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لیکن اسے خوف تھا کیونکہ اس کے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس نے اپنے جذبوں کو لگام ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ یہ محبت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بابا اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی اور یہی اس کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں نے میٹرک سے آگے پڑھائی کسی لڑکی نے نہیں پڑھی تھی، لیکن اس کو اجازت دے دی گئی تھی، محبت دے دی گئی تھی۔ وہ محبتوں کے چکروں میں پڑھ کر اپنی تعلیم داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ لازم نہیں کہ اس کو بھی میرا خیال ہو، جو میرا خیال ہے وہی اس کا بھی خیال ہو۔ کوئی خبر کہیں سے خوشی کی ملے منیر، اس روز و شب میں کوئی دن ایسا کمال ہو۔ نیاز بیگ اور رحمہ کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، عرشیہ اور رامین۔ نیاز بیگ کا تعلق وڈیروں کے خاندان سے تھا۔ نیاز بیگ نے اپنے والد کی مخالفت کر کے اپنے بیوی بچوں سمیت شہر آگے تھے، اپنے زور کے وضو سے محنت مشقت کر کے معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا اور گاؤں کو الوداع کہہ کر شہریت کی زندگی اختیار کر لی۔ عرشیہ نے میٹرک کر لیا تو نیاز بیگ کا ارادہ عرشیہ کو اپنے گھر کرنے کا تھا۔ انہوں نے شہرت تو حاصل کر لی تھی لیکن سوچ کو نہ بدل سکے۔ جب عرشیہ نے ضد کی تو آخرکار اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یار میں کون سا ڈریس پہنوں سمجھ نہیں آ رہا، تم ہی ہیلپ کر دو۔ حوریہ کافی دیر سے ڈریس سلیکٹ کرنے میں مصروف تھی لیکن کوئی فنکشن کی مناسبت سے مل ہی نہیں رہا تھا۔ کل ان کی فیئرویل تھی، اس کے بعد ان کے امتحان تھے۔ اچھا لاؤ دکھاؤ، عرشیہ نے حوریہ کو کہا۔ یہ بلیک ڈریس اچھا لگے گا تم پہ، یہ پہن لو۔ اوکے ڈن۔ ارے یہ تو شاہ زیب بھائی ہیں، تم نے ان کو بھی یہاں آنے کا کہا تھا۔ عرشیہ نے شاہ زیب و تیمور کو دیکھ کر حوریہ سے پوچھا۔ حوریہ نے عرشیہ کے اشارے کرنے پر دیکھا تو شاہ زیب و تیمور کو مہمانوں کے سیٹوں پر بیٹھتے ہوئے دیکھا، جہاں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ تو تیمور بھائی بھی ہیں۔ اچھا میں نے دیکھا نہیں، عرشیہ نے انجان بن کر کہا۔ اچھا۔ حوریہ نے ماتھے پر بر ڈال کر عرشیہ کو دیکھا۔ چلو اسٹیج پر ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، میڈم قیمہ بنا دیں گی دونوں کا، چلو۔ حوریہ یہ کہہ کر عرشیہ کے ساتھ اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ حوریہ اور عرشیہ نے میلو ڈرامے میں حصہ لیا تھا، ان کے ساتھ کالج کے 1-2 لڑکیوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ فنکشن کے اختتام پر شاہ زیب حوریہ کے پاس آیا تھا۔ حوریہ بلیک کرتی اور پلازو میں اس کی دودھیا رنگت کھل اٹھی تھی۔ شاہ زیب کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا لیکن اسے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا، ورنہ تیمور نے اس کی درگت بنانے میں ٹائم نہیں لگانا تھا۔ عرشیہ بھی کم حسین نہیں لگ رہی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پیاری لگ رہی تھی۔ ہائے حوریہ، یہ ہینڈسم کون ہے؟ ثانیہ نے بے باکی سے شاہ زیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے لباس ایسا زیبتن کیا ہوا تھا کہ لڑکے تو لڑکیاں بھی اس کو دیکھتے ہی شرمندہ ہو جاتی۔ سلیو لیس آستین اور شرٹ کے گلے کی گہرائی، دوپٹہ سر سے ہی غائب تھا، اس کا حلیہ اس کے مغربی سرکل کو نمایاں کر رہا تھا۔ حوریہ تو ہونوں کی طرح کبھی ایسے اور کبھی شاہ زیب کو غصے سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب حوریہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ثانیہ نے ڈھٹائی سے شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا نام پوچھا۔ شاہ زیب نے نہایت ہی ناگواری سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ مس، آپ اپنے لمٹس میں رہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں، شاہ زیب نے سختی سے کہہ کر حوریہ کو گھورا۔ ثانیہ کی حرکت سے اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ یہ کس طرح کی لڑکیوں سے دوستی ہے تمہاری؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مجھے اس طرح کی بیہودہ لڑکیوں سے سخت نفرت ہے؟ شاہ زیب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حوریہ کو ایک تھپڑ لگا دے کہ اس نے اس قسم کی لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے۔ غصے میں جو منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا، اور حوریہ جس نے کبھی شاہ کا غصہ نہیں دیکھا تھا اور اب اس کے غصے کو دیکھ کر استان خطا ہو گئے تھے۔ ہیلو مسٹر، اپنی اوقات میں رہو، تم سے میں نے ایک بات کر لی تو تم اپنی اوقات ہی بھول کے سب سمجھتی ہوں میں۔ اس کی بات اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑ نے روک دی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، اس سے آگے حوریہ کے اندر حوصلہ پست ہو گیا۔ شاہ زیب کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ حوریہ کی ہمت دیکھ کر، ایویں تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے ثانیہ افندی کو تھپڑ مارا، کیا لگتا ہے
ये तुम्हारा जो तुम इतनी अहमियत कर रही हो। हाँ बोलो, बड़ा शरीफ बना फिरता है। और अपनी बकवास बंद करो, निकाह हुआ है मेरा इनसे। तुम्हारी तरह शाख शाख मंडराने वाली कली नहीं हूँ। जहाँ सानिया का मुंह बंद हुआ वहीं लगे लड़कियों के झुंड में लड़कियों के हैरत से मुंह खुल गए। हुरिया कहकर भागती हुई हॉस्टल की जानिब चली गई। शाहजेब तो अभी तक सख्ते की हालत में था। देखा शाहजेब भाई, आप इसे ही डांट रहे थे जो आपके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती, और ये हमारी दोस्त नहीं है। हुरिया के हुरिया की मेरे सिवा किसी से दोस्ती नहीं है, अर्शिया ने सानिया को जाते हुए देखकर कहा। फिर एक खौफकी नज़र शाहजेब पर डालकर मुड़ गई। शाह ने भी मुझे गलत समझा। इनको तो पता है मैं किस मिजाज की हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझे ही इनके सामने डांट दिया। हुरिया की बेआवाज़ आंसू तकिए को भिगो रहे थे। अर्शिया ने कितनी ही बात करने की कोशिश की, लेकिन हुरिया ने जवाब नहीं दिया। अगर अर्शिया से शाहजेब के बारे में बात करती तो इसको शाह के बारे में अच्छे या बुरे कमेंट्स करने का मौका मिल जाता, और हुरिया को ये गवारा नहीं था कि वो अपनी ही दोस्त के मुंह से शाह के लिए कुछ गलत सुने। शाहजेब को रह रहकर एहसास नदामत हो रहा था। दिल तो इसका भी बहुत दुखा था, लेकिन गुस्से ने सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया था। यार, मैंने हुरिया को खामख्वाह डांट दिया, अब वो कितना रो रही होगी। मैं भी जा भी नहीं सकता इसके पास इस वक्त, तो हॉस्टल में आने की इजाज़त भी नहीं है। शाहजेब अपनी सारी बातें तैमूर से शेयर करता करता था। यूं भी सारे हालात इसी के सामने थे। हाँ क्या हाँ किया तो तुमने गलत है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ वो छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी होगी, और हिम्मत देखो यार। मैं गुड़िया को देखता रह गया। हाँ, लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं चलता। मैं तो पाकिस्तान आते हुए यही सोच रहा था कि हनी मुझे देखते ही भागकर मेरे गले लग जाएगी। हाँ, अब नहीं लगी तो क्या हुआ, फ्यूचर में तुम्हारे ही गले लगना है। तैमूर ने शाहजेब की बात को कुछ और ही रंग दिया। बकवास ना कर, मेरा ये मतलब नहीं था। शाहजेब ने घूर कर तैमूर को देखा। अब मतलब तो हूर ही बता सकती है। तैमूर ने इशारत से कहा, तू दफ़ा हो रहा है या नहीं? नहीं, जब तेरी शादी होगी ना फिर पूछूंगा तुझे। वैसे तो कब खिलाएगा पछतावे के लड्डू? तैमूर ने पास पड़ा कुशन शाहजेब को मारा। शाहजेब का कहका बुलंद हुआ। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बहुत जल्द ये नेक काम करने जा रहा हूँ। तैमूर ने शाहजेब को बताया। क्या ये पर्दे के पीछे ज़्यादा कब से पक रहा है? ये पर्दे के पीछे ज़्यादा कब से पका रहा है तो? शाहजेब ने खोजते हुए लहजे में पूछा। पकाऊंगा अभी। तैमूर की आवाज़ पर शाहजेब ने घुरी से नवाजा। अर्शिया ने लास्ट पेपर के बाद हॉस्टल को खैरबाद कह दिया। अर्शिया, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। रहमा बेगम ने आज अर्शिया से बात करने का सोचा था। पेपर्स की थकान थी, इसलिए रहमा ने बात नहीं की थी। ये क्या कह रही हैं? मैं अभी शादी नहीं कर सकती। अर्शिया की बात पर रहमा बेगम कुछ खटखटा। क्यों क्यों नहीं कर सकती? रहमा बेगम की आवाज़ की सख्ती पर अर्शिया ने गड़बड़ा कर कहा। ना, नहीं नहीं, मेरा मतलब है अम्मी, अभी तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, और बस बस वो भी आ जाएगा। इतना पढ़ लिया काफ़ी है, हमें ये रिश्ता मुनासिब लगा है। तुम भी अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, निकाह इस जुम्मे को है। पर अम्मी, मेरी बात तो सुनिए। रहमा बेगम कमरे से चली गई। अर्शिया अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया? मुझसे पूछना तो दरकिनार, बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अभी भी क्यों बताया? निकाह वाले दिन ही बता देते। आप भी क्या बड़बड़ा रही हो? तुम चुप करो, तुमसे नहीं कह रही। अर्शिया का बस नहीं चला तो रहमा की डांट दिया। रामीन बेचारी अपना सा मुंह बनाकर रह गई। हनी, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए, हुरिया ने अखड़े हुए लहजे में जवाब दिया। जब से हुरिया हॉस्टल से आई थी, शाहजेब के सामने कम आती थी, और अब तो पटर पटर बोलना भी बंद कर दिया था। दिल दुखा था इसका शाहजेब के रवैये से, और ऊपर से शाहजेब ने एक्सक्यूज़ भी नहीं किया। वो अपने दिल में बदगुमानियाँ नहीं लाना चाहती थी, लेकिन जिनसे मोहब्बत होती है वो इनकी बेपरवाही कहाँ बर्दाश्त होती है। इस जुम्मे को तैमूर का निकाह है। शाहजेब ने गोया बम फोड़ा था। क्या इस जुम्मे मैं को? और मुझे बताया नहीं? हुरिया का मुंह खुल गया था। मुंह तो बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। तैमूर की आवाज़ पर दोनों ने पलटकर देखा। हुरिया तो उठकर जाने लगी थी। अरे अरे, क्या हुरिया नाराज़ हो गई है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। निकाह भी फाइनल कर लिया। अब वलीमे पर ही लाते निकाह का भी क्यों कहा? हुरिया की आवाज़ में शिकवा था। असल में तुम्हारी दोस्त इतनी पसंद आई, क्या देर नहीं कर सकता था, वरना इससे हाथ धो बैठता। क्या अर्शिया, कब से चल रहा है ये चक्कर? मुझे तो पहले ही शक था। इस मुन्नी ने मुझे बताया तक नहीं। ओ लड़की, चूड़ी के नीचे दम तो लेने दो, ब्रेक लगाओ यार। अभी भी तो वैसी हो, बस लंबी हो गई हो। तैमूर ने हुरिया को छेड़ा। देख लें,
आप अपने दोस्त को समझा दें, मेरा मजाक ना उड़ाए। हुरिया ने शाह को बीच में घसीटा। ये तो कब से तुम्हें ही देख रहा है। तैमूर की बात पर हुरिया ने शाह को देखा, जो मुसलसल इसे ही देख रहा था। शाहजेब ने हुरिया के देखने पर नज़रों का जाविया फेर लिया। तो फिर शुरू हो गया ना। और तुझे अपने घर में सुकून नहीं मिलता। जब भी मैं हुरिया से बात करने बैठूं तो तू आ धमकता है। अब के शाहजेब ने अपना बदला पूरा किया। चल चल, बहुत कर ली बातें तूने। मैं हुरिया गुड़िया को लेने आया हूँ। जब तक रुखसती नहीं होगी तो हूर से नहीं मिलेगा। हुरिया इसकी तरफ दोनों दोनों देख रही थी। जब रहा नहीं गया तो पूछ लिया, कोई मुझे बताएगा किसकी रुखसती की बात हो रही है। तुम्हारी भी हफ्ते को रुखसती है। मैं तुम्हें भाई की तरह अपने घर से रुखसत करूंगा। तैमूर की बात पर हुरिया की आंखों में आंसू आ गए। भाई का मान क्या होता है वो आज जानी थी। बाप और भाई का रिश्ता एक लड़की के लिए अमान और मुहाफिज होता है, जिससे एक लड़की एक बहन ही समझ सकती है। हुरिया तो खुद रिश्तों की तरसी हुई लड़की है। तैमूर की बात पर अपने आंसू न रोक सकी। तैमूर ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा था। शाहजेब इसके अश्कों को देख रहा था, जो न जाने किस किस एहसास के तहत निकल रहे थे। ये बात शाहजेब से बढ़कर कौन समझ सकता था भला। अर्शिया और तैमूर का निकाह था, बल्कि रुखसती 1 साल बाद होना करार पाई थी। और शाहजेब की बाकायदा शादी थी। जुमेरात को माइयों बैठना था दोनों का। और माइयों का और बारात का फंक्शन तैमूर ने डिसाइडेड किया था, जबकि वलीमा शाहजेब ने करना था। हुरिया को तैमूर के घर आकर अपना आप लगा। वहाँ के मकीनों ने हुरिया को हाथों हाथ लिया। अलीज़ा भी अपने बच्चों समेत आ गई थी। वहाँ हुरिया का दिल लग गया था। वहाँ के लोगों की आपस की मोहब्बत और छेड़छाड़ से हुरिया खूब लुत्फानंदोज होती थी। आज भी सारे गपशप करने हुरिया और तैमूर की गद बनाने में लगे हुए थे, जिसमें अलीज़ा आगे आगे थी। तैमूर भाई, आपको कितने छुपे रुस्तम निकले। मेरी दोस्त पर नज़र रखे हुए थे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। और लड़की तस्दीक कर लो, नज़र नहीं रखी बल्कि दिल में रखा है, जिसका अमली सबूत निकाह होगा। ओहो, तैमूर की बात पर सबने कहका बुलंद किया। शाहजेब और बी अम्मा दोनों लॉन्च में बैठे थे। बी अम्मा की उम्र अब ऐसी थी कि वो भाग भाग कर काम नहीं कर सकती थी। जब भी उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया था, शादी की तैयारी भी तो करनी थी। और फिर जाते जाते हुरिया शाह से कहकर गई थी कि शाम में शाहवेला में आऊँगी, रुखसत होकर अपने बाप के घर में। शाहजेब भी यही चाहता था। यूँ आज ये लोग अपने मुख्तसर सामान बांध रहे थे। माइयों का दिन भी आ गया। इसकी सारी तैयारी अलीज़े और तैमूर ने मिलकर कर ली थी, जबकि बारात और वलीमे का जोड़ा शाहजेब ने खुद लिया था। पूरे घर को गेंदे के फूलों से सजाया हुआ था। अरेंजमेंट से पता लग रहा था कि माइयों है। हुरिया को दुपट्टे की छांव में स्टेज पर लाया गया था। हुरिया ने पीला जोड़ा जेबतन किया हुआ था और दुपट्टे से आगे को घूंघट गिराया हुआ था, जिससे हुरिया का चेहरा छुप गया था। शाहजेब ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें इसकी खूबसूरती नुमायां हो रही थी। हुरिया को शाहजेब के बराबर में बिठाया गया और इसमें शुरू हो गई। हुरिया की कपकपाहट शाहजेब को वाज़ह महसूस हो रही थी। हुरिया सिमटी सी बैठी हुई थी। शाहजेब की नज़रें हुरिया के हाथों पर गई। नाजुक कलाइयों में गजरे इसके हाथों में सजे हुए थे कि आज ही सारा दीदार करेगा। तैमूर की आवाज़ पर सब की हंसी छूट गई, जबकि शाहजेब ने घूरने पर ही इत्तफाक किया। यूं यूं ये रात भी गुजर गई। जुम्मे का दिन था और तैमूर का निकाह जुम्मे की नमाज के बाद रखा गया था। हर तरफ गहमा गहमी छाई हुई थी। हुरिया ने तो कहा था कि वो भी निकाह में जाएगी, लेकिन इसे ये कहकर रोक दिया कि माइयों की दुल्हन घर में ही रहती है, जबकि शाहजेब तैमूर के साथ साथ था। निकाह की तकरीब घर में सादगी से रखी गई थी। निकाह के वक्त अर्शिया को पता चला कि इसका निकाह तैमूर से हुआ है। अभी वो बेयकीनी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा बजा और अंदर आने वाले शख्स को देखकर अर्शिया खड़ी होगी। तैमूर के कदम हुरिया की जानिब थे और वो हैरत से तैमूर को देखे जा रही थी। अर्शिया की जानिब थे वो हैरत से तैमूर को देखे जा रही थी, जो ब्लैक शेरवानी में खूबरू लग रहा था। भाई तैमूर के कदम हुरिया की जानिब थे और वो हैरत से तैमूर को देख रही थी, जो ब्लैक शेरवानी में खूबरू लग रहा था। तैमूर भाई, इसके शगुफी लबों पर उंगली रख के तैमूर ने इसे बोलने से रोका। कुछ तो ख्याल करो, अभी तो निकाह हुआ है। अर्शिया ने शर्माते हुए, एक सेकेंड, यहाँ पर राइटर ने कुछ गड़बड़ की है। तैमूर के कदम अर्शिया की जानिब थे। वो हैरत से तैमूर को देखे जा रही थी, जो ब्लैक शेरवानी में खूबरू लग रहा था। तैमूर इसके शर्फी लबों पर उंगली रखे तैमूर ने से बोलने से रोका था। कुछ तो ख्याल करो, अभी तो निकाह हुआ है। अर्शिया ने शर्म के मारे नज़रें झुका ली थी और इसके सोने से मुखड़े को तके जा रहा था। जब कोई जवाब नहीं आया तो अर्शिया ने नज़रें उठाकर देखा। इतने में दरवाजे की दस्तक ने तैमूर की महवियत को तोड़ा था। टाइम हो गया, दूल्हे भैया। रामीन कमरे से बाहर
ही आवाज़ें लगा रही थी। तैमूर ने अर्शिया के माथे पर अपनी मोहब्बत की निशानी जब्त की और कमरे से निकलता चला गया और अर्शिया इसके लम्स में खो गई थी। आज चूंकि तैमूर के निकाह के बाद शाहजेब का भी निकाह था, सो बारात के आते ही निकाह की तैयारी शुरू हो गई थी। यूं भी शाहजेब चाहता था कि निकाह दोबारा हुरिया की भरपूर रजामंदी से हो। हुरिया को अपने वालिदैन इतने याद आ रहे थे कि इसके आंसू खुश्क ही नहीं हो रहे थे, और ये बात भी शाहजेब को तैमूर ने बताई थी। बहरहाल निकाह के बाद हुरिया को स्टेज पर लाया गया था। शाहजेब तो इसके हुस्न को देखता ही रह गया। नूरानी चेहरे पर महारत से किए गए मेकअप, रेड और गोल्डन कलर की शरारत में वो सच में जन्नत की हूर लग रही थी। तैमूर की शौकी और शरारत अपने अरूज पर थी। शाहजेब ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। आज वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत जर्जर रही थी। अर्शिया भी बारात में शरीक थी। यूं भी तो निकाह तो हो गया था। रुखसती के मराहिल तय करने के बाद अर्शिया ने शाहवेला में शाहजेब के रूम में हुरिया को ले गई। अर्शिया और तैमूर दोनों बारात के साथ आए थे। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाबों के फूल की भीनी भीनी खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। वो हुरिया के करीब बेड पर बैठ गया। हुरिया घबराहट में अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। तोड़ोगी क्या उंगलियां, क्यों जुल्म कर रही हो इन पर। शाहजेब ने इसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया। शाहजेब की हरकत पर हुरिया ने करंट खाकर हाथ खींचना चाहा, लेकिन शाहजेब की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। हनी, शाहजेब की आवाज़ की गंभीरता ने हुरिया के रहे से असाब भी कमज़ोर कर दिए थे। मेरी तरफ नहीं देखोगी? हुरिया ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों, आपने मुझे डांटा था? ओह हुरिया, तुम इतनी पुरानी बात दिल में रख कर बैठी हो। हाँ, तो आपको सबके सामने मेरी हमायत करनी चाहिए थी। अच्छा लो, अब मैंने कान पकड़ लिए, मेरे नहीं अपने पकड़े। शाहजेब ने हुरिया के कान पकड़ लिए थे, जिस पर हुरिया ने घूर कर कहा, शुक्र है तुमने मुझे देखा तो सही। शाह, आपको पता है ना, मैं आपसे आपसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। जाने शाह, मैं भी अपनी हनी को अपनी ही डांटूंगा। शाहजेब ने साइड टेबल की दराज से एक मखमली केस निकाला और खोलकर इसमें से हीरो का हार इसकी तरफ करके इजाज़त तलब नज़रों से हुरिया को देखा, जिसने शर्मा कर अपना सर झुका लिया। शाहजेब ने इसकी अदा पर नहाल होते हुए इसकी गर्दन में पहना दिया और पीछे होकर खुद इसे अपने बाजू के हल्के में भर लिया। रात धीरे धीरे से सुनहरी ख्वाबों की ताबीर लिए ढल रही थी। दूसरे दिन वलीमा में हुरिया ने सिल्वर कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। ये जोड़ा भी शाहजेब की पसंद का था, जबकि अरिशा भी नेवी ब्लू साड़ी पहनी थी। इसकी नाजुक सरापे पर जच रही थी और बालों को खुला छोड़ दिया था। तैमूर ब्लैक पैंट कोट में खूबरू लग रहा था। क्या ख्याल है, आज ही रुखसती ना करवा लूं तुम्हारी? तैमूर ने अर्शिया के कान में बोला था। अर्शिया का चेहरा सुर्ख हो गया था। जल्दी से घबरा कर इधर उधर देखा। ओ ओ गॉड अर्शिया, इतना क्यों घबराती हो मुझसे? वो कोई देख लेगा, प्लीज़ आप जाएं। देखता है तो देखने दो, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ और मुझे तुमसे बात करनी है। कल शाम में रेडी रहना, हम आउटिंग पर चलेंगे। तैमूर ये कहकर स्टेज की जानिब चला गया और अर्शिया जो इसको इनकार करने लगी थी, मौका ही ना मिला। हुरिया सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि शाहजेब के अंदर आने की आहट भी महसूस ना कर सकी। वलीमे के बाद शाह वेला में मौजूद थे, जिसमें अर्शिया और तैमूर आगे थे। हुरिया थोड़ी देर बाद बैठकर चेंज करने की गरज से रूम में चली गई। इसका दिल अपने माँ बाप को याद कर रहा था। शाहजेब इसके बराबर में आकर बैठा। हनी, हुरिया इसकी आवाज़ पर चुड़की थी और जल्दी से आंखों के गोशों को साफ किया था। वो शाहजेब को बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। शाहजेब ने इसके कंधे को पकड़कर रुक अपनी तरफ अपनी जानिब किया। क्या हुआ हनी, क्यों रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं चेंज कर लूँ। हुरिया ने खड़ा होना चाहा, लेकिन नाकाम रही। शाहजेब ने इसका हाथ पकड़कर बैठा लिया था। क्या तुम मुझे अब इस काबिल नहीं समझती तुम मुझसे अपनी दुख शेयर कर सको? वो शाहजेब ही क्या, जो हुरिया के चेहरे को ना पढ़ सके। बचपन से लेकर अब तक वो इसकी आदतों से वाकिफ था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हुरिया ने इस पर वज़ा करना ज़रूरी समझा। अच्छा, फिर कैसी बात है? शाहजेब ने हुरिया के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसाब में रखते हुए पूछा। मुझे मामा याद आ रही हैं शाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं से आकर मुझे गले लगा लें। शाह, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मामा के पास चली जाऊँ। हुरिया की हिचकी बन गई थी। याद है, याद तो इसे भी आ रही थी, लेकिन वो मर्द था, मजबूत था। हनी, आनी खुश होंगी, मैंने इनकी सालों पहली ख्वाहिश को अमली तौर पर निभाया है। तुम रो रो कर खुद भी हलकान हो रही हो और इन्हें भी तकलीफ दे रही हो। शाम, मैं क्या करूं? मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन जब मुझे इनकी याद आती है मेरे आंसू बेकाबू हो जाते हैं। आंसू से भरी बड़ी 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 आंखों इसके हुस्न को खैरा कर रही थी। शाहजेब ने इसके रुखसारों पर बहते मोतियों को अपनी उंगलियों की पुरों से चुन लिया। शाह, उठे जाएं, कितनी देर से सो रहे हैं? हुरिया के हराने पर शाहजेब कसमसाया और करवट लेकर दोबारा सो गया। अब तो हुरिया बुरी तरह तप गई थी। काफ़ी देर से कोशिश करी थी शाहजेब को उठाने की, लेकिन वो तो गधे घोड़े और हाथी सब बेच कर सो रहा था। आपके हुरिया ने इसके दोनों
हाथों को जोर से झंझोड़ा, इसके कान के पास आकर जोर से चीखी, शाह, या अल्लाह खैर, क्या आफत आ गई? शाहजेब हड़बड़ाकर उठ बैठा। हुरिया का चेहरा देखा जो लाल हो रहा था। क्या मसला है? सोने दो ना, शाहजेब ने झंझलाई हुई आवाज में कहा। नींद टूटने की वजह से आंखों के डोरे लाल हो गए थे। मुझे कब से भूख लग रही है और आप की नींद पूरी नहीं हुई। हुरिया ने गुस्से से कहा। तो मुझे खाओगी क्या? जाकर कह दो बी अम्मा से। शाहजेब का लहजा चिड़चिड़ा लिए हुए था। सोने दो शाहजेब, इससे पहले कंबल ऊपर ओढ़ता। हुरिया ने कंबल के कोने से पकड़कर खींच लिया और खतरनाक तेवरों से घूरने लगी। अब के शाहजेब संजीदा अंदाज में हुरिया की जानिब बढ़ा। इससे पहले उसे पकड़ता हुरिया इसके तेवर देखकर कमरे से रफू चक्कर हो गई और शाहजेब दरवाजे को गुस्से से तकता रह गया। थोड़ी देर बाद वो नाश्ते की ट्रे लिए रूम में दाखिल हुई तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी। चलो शुक्र है उठ तो गए। हुरिया ने नाश्ते की ट्रे साइड टेबल पर रखी और खिड़की से पर्दे हटाने लगी। दरवाजे की आहट पर मुड़कर देखा तो निखरा निखरा सा शाहजेब गले में टावर डाले, माथे पर बिखरे बाल, मर्दाना वजह ली हुरिया की तरफ आया। हुरिया ने घबरा कर रुख मोड़ लिया। शाहजेब कदम कदम चलता इसके करीब तर होता जा रहा था। हुरिया पीछे की जानिब बढ़ ना सकी और खिड़की से लग गई। शाहजेब इसके ऐन सामने आकर दोनों हाथों को दाएं बाएं रखकर इसकी जाने के तमाम रास्ते बंद कर चुका था। हुरिया इसकी कसरती बाजुओं में पूरी छुप गई थी। शाहजेब इसके वालिवाना नजरों से देख रहा था। शाह, वो नाश्ता ठंडा हो रहा है। हुरिया इसके गुर्बत में बोला ही नहीं जा रहा था। शाहजेब की नज़रों की तपिश से इसका चेहरा लाल हो गया था। शाहजेब ने उंगली इसकी थोड़ी पर रखकर इसका चेहरे को ऊंचा किया। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? अब तुम्हारी बोलो, शाहजेब ने शाह से कहा। हुरिया ने इसे पीछे हटाना चाहा लेकिन वो नहीं, नन्ही सी जान इसे हिला भी नहीं सकी। शाहजेब को इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। शाह, वो देखें बी अम्मा। हुरिया ने बहाने से इसे हटाना चाहा लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। हाँ हाँ, अब नहीं आऊँगा तुम्हारी बातों में। शाह, हट जाए ना, मुझे भूख लग रही है और आप तंग किए जा रहे हैं। हुरिया ने मुंह बनाकर कहा। इसे तंग नहीं, जाने मन रोमांस कहते हैं। शाहजेब की बात पर हुरिया का मुंह खुल गया था। शाह, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। हुरिया ने इसकी बेबाकी पर हैरान होते हुए कहा। पहले तुम मेरे इतने करीब नहीं थी ना, इसलिए। अभी वो जवाब ही देने लगी थी कि मोबाइल की बेल पर शाहजेब पीछे हटा और हुरिया लम्हा ज़ाय किए बगैर इसके खसा से निकली थी और नाश्ते की ट्रे उठाकर सोफे पर बैठ गई। शाहजेब ने इसके अंदाज पर ज़बरदस्त कहका लगाया। आपको तैमूर भाई लेने आए हैं, जल्दी आ जाएं। हाँ, आ रही हूँ। तुम बैठाओ इन्हें। वो तो काफ़ी देर से बाबा से बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा। यार आमीन, मुझे डर लग रहा है जाते हुए। क्यों भला? इसमें डरने की क्या बात है? आप अपने शौहर के साथ जा रही हैं, किसी गैर के साथ नहीं। चलें करें यार। ओहो, एक तो तुम हर बात पर मजाक में ले लेती हो। अच्छा ये बताओ, ड्रेस सही लग रहा है? कसम से आप इतनी अच्छी लग रही हैं कि कहीं तैमूर भाई आज ही रुखसती ना करवा लें। रामी ने शरारत से इसे आंख मारते हुए कहा। चुप बदतमीज। अर्शा ने इसे डांटते हुए कमर पर एक हाथ रसीद किया। उफ, आपका हाथ है या लोहा? भी बताती हूँ तैमूर भाई को। रामी ने धमकी अमेज लहजे में कहा। तुम कट जाओगी। तुम्हें मैंने अर्शिया को बुलाने भेजा था और खुद गप्पे लगाने बैठ गई हो। और रहमा बेगम ने रामीन और अर्शिया दोनों को टोका। अम्मी, वो। अर्शिया ने घबराकर माँ को देखा, कहीं वो ये ना समझ लें कि इसने जाने का कहा है तैमूर से। अरे अर्शिया, जल्दी कर लो, बच्चा कब से इंतज़ार कर रहा है। मुझसे कल ही फ़ोन पर इजाज़त ले ली थी। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। तुम नीचे नीचे आ जाओ। मेरे साथ जाने का दिल नहीं चाह रहा था क्या? तैमूर ने अर्शिया को गहरी नज़रों में देखते हुए कहा। वो पहले ही इसकी नज़रों से घबराई हुई थी। नहीं नहीं नहीं, ये किसने कहा आपसे? अर्शिया को यूँ लगा रामीन ने इसे बता दिया हो। लग तो ऐसे ही रहा है। आने में इतनी देर कर दी थी तुमने। वो मैं तैयार हो रही थी। अच्छा, तैमूर ने इस अंदाज में कहा क्योंकि मेकअप के नाम पर काजल और लिप ग्लोस ही लगी हुई थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लें? तैमूर ने वेटर को इशारे से बुलाकर ऑर्डर दिया। शाहबाज सुने। हुरिया ने रिमोट से टीवी की आवाज़ को कम किया। शाहजेब ने हुरिया की जानिब देखा। आप बिज़ी हैं क्या? हुरिया ने इसके सामने रखे लैपटॉप को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो गेंद बल्ला खेल रहा हूँ। शाहजेब ने हुरिया को चढ़ाया। ओके, खेलते रहें। हुरिया कहकर उठकर जाने लगी। शाहजेब ने इसका हाथ पकड़ के इसे अपने करीब उठाया। बोलो, क्या कह रही थी? शाहजेब ने इसके चेहरे पर आईलैट को कान के पीछे किया। वो मैं कह रही थी कि आइसक्रीम खाने चलें। हुरिया ने डरते डरते पूछा कि कहीं वो डांट ही ना दे। कल चलेंगे हनी, आज बहुत काम है। ऐसा करो, घर में ही मंगवा लो। नहीं, रहने दे, आप काम कर ले। हुरिया ये कहकर कमरे में आ गई। हर वक्त काम ही करते रहते हैं, खड़ूस नहीं तो। हुरिया बेड पर बैठकर मुंह फैलाए दिल की भड़ास निकाल रही थी। शाहजेब ने इसके पीछे
اس کے بجھے چہرے کو دیکھا تو خود بھی اٹھ کر روم میں آ گیا۔ ہنی حوریہ نے شاہزیب کی آواز کو نظر انداز کیا اور موبائل اٹھا لیا۔ یہ بھی ناراضگی کا ایک اظہار تھا۔ شاہزیب اس کے غصے سے پھولے ہوئے منہ کو دیکھا اور مسکرا کر اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ حوریہ نے سوالی نظروں سے شاہزیب کو دیکھا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ شاہزیب کے کہنے پر حوریہ خوشی سے بولی، کیا سچ میں ابھی تیار ہوتی ہوں؟ حوریہ یہ کہہ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ تم بہت چینج ہو گئی ہو ہنی، حوریہ نے چونکتے ہوئے دیکھا۔ کیوں میں کیوں چینج ہوں گی؟ پہلے جب میں تمہاری کوئی بات مانتا تھا تو تم میرے گلے لگ جاتی تھی، اب نہیں لگتی۔ حوریہ نے شاہزیب کی بات پر غور سے دیکھا۔ پہلے تو وہ سمجھی نہیں کہ، لیکن جب سمجھ آیا تو شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ اوئے ہوئے، یہاں تو کوسے قزح کے رنگ پھیلے ہیں۔ شاہزیب نے اس کو چھیڑا تو وہ واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ پاگل ہے بالکل، شاہزیب نے ہنستے ہوئے سوچا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ گاڑی روکیں۔ شاہزیب نے حوریہ کے یوں چلانے پر بریک لگایا۔ کیا ہوا؟ وہ دیکھیں گول گپے والا، مجھے یہ کھانے ہیں۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں تو ڈر ہی گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس دن تم ایکسیڈنٹ کروا دو گی۔ شاہزیب نے اس سے گور کر دیکھا۔ اچھا نہ چلیں اب۔ حوریہ نے اس کی ڈانٹ کو سیریس نہیں لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گلا خراب ہو جائے گا، ویسے بھی تم نے آئس کریم کا کہا تھا۔ شاہزیب نے صاف چٹ انداز میں انکار کر دیا۔ چلیں نا شاہ، پلیز دیکھیں، آپ نہیں کھلائیں گے تو کون کھلائے گا؟ آخر آپ میرے شوہر ہیں۔ حوریہ نے ایک دم اپنی زبان دانتوں میں دبا لی۔ وہ جو فرصت سے باہر دیکھ رہا تھا، حوریہ کی بات پر کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ بولنا۔ حوریہ نے بنا سوچے سمجھے بول دیا۔ وہ میں کہہ رہی ہوں کہ گول گپے کھانے ہیں، چلیں۔ نہیں، اس کے بعد جو بولا تھا وہ بتاؤ، کیا ہے شاہ؟ چلے نا۔ ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، میں بھی رات تک یہی رہوں گا، اور وہ تو میں جب ہی کھلاؤں گا جب تم بتاؤ گی۔ شاہ زیب اسے تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا، تو اب سے اس کے کان ترس گئے تھے یہ سننے کے لیے۔ حوریہ نے تو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تم کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ عرشیہ کچھ سوچ رہی تھی۔ تیمور نے اس کے رکے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا، جی میں کھا رہی ہوں۔ کیا کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تیمور نے اس کی بے خیالی کو پریشانی سمجھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عرشیہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیسے کہے۔ دیکھو، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ عرشیہ نے سوچا کہ کہہ دوں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ مجھے آگے پڑھنا ہے؟ عرشیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں تو پڑھ لو، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ عرشیہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ اسے اتنی جلدی تیمور سے ہاں کی امید نہیں تھی۔ تیمور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ رہا تھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں آگے پڑھنے سے منع کر دوں گا تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی شریک حیات کو اپنے برابر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کی جائز بات کو نہ مانے۔ تم پڑھو جتنا پڑھنا چاہتی ہو رہی بات انکل سے اجازت لینے کی تو میں خود بات کر لوں گا، اب تم کھانا کھاؤ۔ تیمور نے اس کے ہاتھ کی پشت کو تھپک کر کہا، اور عرشیہ کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ تیمور اتنی مثبت سوچ کا مالک ہے۔ اس کی آنکھیں تشکر سے تیمور کو دیکھنے لگیں جو اب کھانا شروع کر چکا تھا۔ شاہ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ چلیں نا، وہ چلا جائے گا۔ آپ کے شاہ زیب نے سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ بھی ٹھان کے بیٹھا تھا کہ بلوا کا زور رہے گا۔ ضد ہی سمجھ لو، تم پر ہے اب یہ کہ تم بولو گی یا نہیں۔ حوریہ کو اب بولنا ہی تھا، ورنہ وہ گول گپے سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اچھا شاہ، کھلا دیں، میں آپ کی بیوی ہوں نا، حوریہ نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن شاہ زیب نے سن لیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم یہاں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ شاہ زیب اس کے لیے ایک پلیٹ گول گپوں کی لے کر آیا تھا، اور حوریہ نے اس کے ہاتھ میں ایک ہی پلیٹ دیکھی۔ شاہ، آپ کی پلیٹ کہاں ہے؟ آپ نہیں کھائیں گے؟ تم ہی کھاؤ، میں نے اپنا گلا خراب نہیں کروانا۔ شاہ، مجھے آگے بڑھنا ہے، حوریہ نے کہا تو شاہ زیب نے اسے ایسے دیکھا جیسے حوریہ نے انوکھی بات کہہ دی ہو۔ کیا یہ تم کہہ رہی ہو ہنی؟ تم حوریہ ہی ہو نا؟ شاہ زیب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حوریہ اور پڑھنے کی بات کرے، کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ اتنا حیران ہو رہے ہیں؟ حیران نہیں ہوں تو اور کیا کروں؟ تم پڑھائی سے اتنا دور بھاگتی تھی اور اب خود آگے پڑھنے کا کہہ رہی ہو۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ حوریہ نے خفا انداز میں کہا، نہیں، میں مذاق تو نہیں اڑا رہا۔ شاہ زیب نے سنبھل کر کہا، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اچھی بات ہے، پڑھ لو، میں کل ہی تمہارا ایڈمیشن فارم لے آؤں گا۔ تھینک یو شاہ، حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عرشیہ اور حوریہ نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ان کو جاتے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ دن یوں ہی رفتار سے گزر رہے تھے۔ 1 سال بعد، ہنی جلدی کرو، کتنا ٹائم لگاتی ہو؟ تیمور کی کالز۔ شاہ زیب نے حوریہ کو بلیک ساڑی میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ حوریہ بلیک ساڑی میں آئینے کی سامنے کھڑی نیکلس پہن رہی تھی، بال سارے آگے کی جانب ڈھلکے ہوئے تھے۔ میدے جیسی سفید رنگت پر بلیک ساڑی اس کے حسن کو دو آشنا کر رہی تھی۔ شاہ زیب کھوئے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور حوریہ کے پیچھے آ کر اس کے نیکلس کی ہک کو بند کیا۔ حوریہ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن پھر سنبھل گئی تھی۔ اف شاہ، آپ نے تو ڈرا ہی دیا۔
किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है। शाहजेब ने से शरीराना अंदाज में देखा। आप पर। हुरिया खिलखिलाते हुए साइड से निकल गई और बेड की जानिब बढ़ गई जहां 6 माह की आनिया लेटे हुए अपने हाथों पांव से खेल रही थी। आनिया को शाहजेब ने पहली दफ़ा जब गोद में लिया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पूरी की पूरी हुरिया की कॉपी थी। इसे ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो। हुरिया की पैदाइश के वक्त इतने हादसे हुए कि शाहजेब को तो ऐसे इसे देख ही नहीं सका था। लेकिन जब वो तहमीना बेगम के पास आया तो इनके हाथों में रुई के गालों जैसी बच्ची थी। आनी, ये तो गुड़िया है, क्या मैं इसे गोद में ले लूं? शाहजेब ने डरते हुए वो पूछा, क्योंकि वो इतने दिनों की ही तो थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शाहजेब ने इसे बहुत आराम से अपने हाथों में उठाया था, नाजुक गुड़िया की तरह, और नाम भी खुद ही रखा था। इसे लगा कि अभी आनी आकर कहेगी, शाह ये तो पूरी हुरिया है। किन किन यादों ने इसकी आंखों में आंसू ले आए थे। आज तैमूर और अर्शा की बारात थी। हुरिया ने ब्लैक साड़ी और शाहजेब ने ब्लैक ही पैंट कोट पहना हुआ था। अर्शिया को स्टेज पर लाया गया। अर्शिया ने मैरून कलर का शरारा और तैमूर ने वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों की जोड़ी खूब जच रही थी। फोटो सेक्शन का सिलसिला रुका तो रुखसती के वक्त हुरिया की आंखों में भी आंसू आए थे, जो शाहजेब ने देख लिए थे। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी तो हो चुकी है रुखसती, क्या दोबारा करवाने का इरादा है? शाहजेब की बात पर हुरिया को हंसी आ गई और शाहजेब भी मुतमिन हो गया। इसका मतलब बस हुरिया का ध्यान बटाना था और हुरिया पुरसुकून हो गई थी। इसका हमसफ़र ही इसकी ज़िंदगी की छाँव है। अर्शिया, मैं चाहता हूँ कि आज सारी बात क्लियर कर दूँ ताकि आने वाली ज़िंदगी में कोई बदगुमानियाँ ना हो। मैं एक खरा बंदा हूँ और मेरी ज़िंदगी साफ़ सुथरी गुजरी है। मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें राह और रस्म बढ़ाने के बजाय डायरेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स से निकाह की बात की। इन्हें मनाना एक मुश्किल काम था, ये पर मैं फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल वो मान गए। मैं चाहता तो सिर्फ मंगनी ही करवा लेता, चूंकि हमारे मज़हब में मंगनी की कोई अहमियत नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाह का कहा। कल को अगर मैं तुमसे कोई बात करूं तो तुम कोई गैर समझकर बात ना करो, बल्कि एक जायज़ और पाक रिश्ते का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारे ज़ेहन में हो। अब अगर तुम्हें कोई शिकायत हो तो बता दो। तैमूर ने अपनी बात क्लियर करके से पूछा। अर्शा की आंखें नम हो गई थी। इतना चाहे जाने पर ये भी तो मोहब्बत ही है कि आप अपनी शरीके हयात को इज़्ज़त दें और इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था, एक शॉर्ट नावल था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको नावल कैसा लगा है। और प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और पूरा देखा करें। और जिन्होंने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।